Good evening, students. Hope you all are in good health. Okay, and this time we are going to start NIC 2023 recruitment strategy planning to crack the exam. Okay, the first and foremost few things we all have to keep in mind and understand the things. Number one, you must be a serious aspirant because if you are not serious, you cannot crack the exam. It's not this recruitment exam, any exam. It's a small, if any easy exam is there and you have to crack it and you are not serious, you cannot crack that too. Okay, so you have to must be a serious aspirant. Second thing, believe in hard work. If anybody is saying there is some shortcut, so there is no shortcut to success. Okay, so there is no shortcut to success. I'm telling you. Excuse me. And third thing is you have to believe in yourself. If these three characteristics are there within you, okay, then welcome to our Sarugara YouTube channel. Why I am saying this? If you do not have these three characteristics, you are doubting yourself. Yeah. If you want any shortcut, that if I get a shortcut, I am going to crack this exam. It's not possible. Okay, so you have to be hardworking. This is the most important thing. You have to be very hardworking. Then only you can do it. Okay, and if you are hardworking, if you believe in yourself, so welcome. You are always welcome. Okay, for this program. So many of you must have heard in various channels about smart way to study. Okay, smart way. So smart way होते क्या है? If your basics are clear, then you can then you can use the smart techniques. Yeah, techniques will automatically start within you. It will come from within yourself. If you know the basics. If you do not have the basics, you do not. Example ले लो. आप एक जगह रहते हो. उस जगह के आपको या ईच एंड एवरी लेन आपको गली वगैरह सब कुछ आपको पता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, लॉन्ग वे नहीं लेके आप शॉर्टकट ले सकते हो बिकॉज यू नो द कॉन्सेप्ट। ऐसे करके जाएंगे तो मुझे ट्रैफिक नहीं मिलेगा, तो मैं इस रास्ते से जाऊं, यू थिंक लाइक दैट। ओके, लेकिन इफ यू आर इन सम अदर प्लेस वेर यू डू नॉट नो एनीथिंग, तो आप क्या करोगे, लॉन्ग वे लोगे ना पहले। कोई नई जगह में यू हैव बीन टू सम न्यू प्लेस, ओके, तो पहले व्हाट यू विल डू, you will take a long cut, you will understand the place, and then only you will start recognizing the paths that from where I can go for shortcuts. Okay, so first you should know the basics, then only you can use the smart technique. Okay, and I know that many of your basics are not clear, so if basics are not clear, it's impossible to crack the exam. That's why we are here. Okay, so we are here to clear the basics. First of all, we have to clear the basics. Then only we are going to use the techniques that we have done this way. We can do. And if you know the basics properly, so if you take a long way also, but long way also you will do it very fast. The shortcut you might forget the shortcut, but the long cut you never forget. Okay, the other thing. तो अब basic means क्या होता है, core concepts. Okay, so if unless our core concepts are clear, we cannot use shortcuts in the MCQs. जो मैंने आपको बताया। सो आवर एम शुड बी लर्निंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ईच पेपर प्रॉपरली। अनलेस यू नो अबाउट द टॉपिक प्रॉपरली, यू कैन नॉट यूज योर ब्रेन। ब्रेन तभी यूज कर सकते जब आपको कुछ पता है। ओके, तो हमें क्या करना है, ये जो सिलेबस है, जो भी सिलेबस इन्होंने दिया है, ओके, उसको क्या करना है, स्ट्रेटेजाइज करना है। सिलेबस इज नॉट वास्ट, आई एम टेलिंग यू अगेन, इज नॉट वास्ट। ठीक है, वो ठीक होंगे। ठीक है, स्ट्रेटेजाइज करने के पहले आप लोग का दिमाग में ये भी आ रहा है एग्जाम कब होंगे, दैट इज ऑल्सो द थिंग। द एग्जाम्स विल बी इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट और सितंबर, आई एम टेलिंग यू, नॉट बिफोर दैट। तो आपके पास टाइम काफी है, टाइम कम है। जिसके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो उसके लिए टाइम टाइम बहुत कम है, उसको बहुत पढ़ना पड़ेगा, ही हैज टू स्टडी वेरी हार्ड। ठीक है, एंड वी आर हियर टू एक्सप्लेन हाउ टू डू इट। ओके, वी आर हियर, वी विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। हम लोग एक कैटलिस्ट है, यू ऑल हैव टू वर्क हार्ड, वी विल आल्सो वर्क हार्ड विथ यू। इफ बोथ डू नॉट गो टुगेदर, तो देयर इज, तो वी कैन नॉट गो एनीवेयर, आई एम टेलिंग। ओके, तो दोनों को साथ साथ चलने पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट सक्सेस, आई एम टेलिंग यू। एंड माय सक्सेस इज इफ यू क्रैक द एग्जाम एंड इफ यू गेट इनटू द गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, तो दैट इज माय सक्सेस, दैट्स द थिंग। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सिलेबस को, जो भी सिलेबस है, सिलेबस देख के स्टार्ट नहीं हो जाना है, चलो सिलेबस में ये है तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं होते हैं, वी हैव टू स्ट्रेटेजाइज। सिलेबस को स्ट्रेटेजाइज करेंगे एंड वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। और ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस जो है, कोई भी सिलेबस ले लो, इट्स लाइक ए स्टोरी टेलिंग। ओके, आपको क्या होता है, कहानी की तरह चलना पड़ेगा, कहानी की तरह, या यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब ठीक है, कहानियों की तरह चलोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेंगे। और यदि आप सोचोगे नहीं मुझे करना है, मुझे मजबूरी में करना पड़ेगा, मुझे जॉब चाहिए, तो इट्स नॉट पॉसिबल, यू हैव टू टेक इंटरेस्ट। और जो भी सिलेबस दिया हुआ है, द सिलेबस इज वेरी इंटरेस्टिंग, द थिंग इज दैट। And when the syllabus is interesting, so
we can do a lot of things on that. Okay, now let me explain how things will work out in our channel. Okay, first and foremost, we'll create WhatsApp group. Okay, you all have to join the WhatsApp group. Okay, we'll provide the lecture links in the WhatsApp group, or if you have doubt or doubt session links, everything will be provided over here. Okay, in the WhatsApp group. So first and foremost, we will create a WhatsApp group, and we have already created it, and the link is in the description box. So join the WhatsApp group first. Okay. सेकंड थिंग, यू हैव टू अटेंड द लेक्चर्स एंड प्रिपेयर नोट्स ऑन योर ओन. आप लोग लेक्चर्स को पढ़ोगे, ठीक है, और नोट्स खुद बनाओगे. आई एम टेलिंग यू, नोट्स आप लोगे ना इधर से उधर से या मुझसे, तो दैट वोंट वर्क. नोट्स अपने ही काम आते हैं. whenever you go for आप लोग, many of you have appeared for these exam or any other exam, तो नोट्स अपने ही काम आते हैं. दूसरे का कोई फ्रेंड के नोट्स हम ले लेते हैं या कोई टीचर के नोट्स ले लेते हैं, इट डजंट वर्क. आप नोट्स बनाओगे तो योर ब्रेन इज प्रोसेसिंग द नोट्स. Okay, that's the thing, it will go into your brain. Okay, so you have to create notes. Okay, and there will be separate doubt clearing session. क्या होता है, क्लास के बीच में आप लोग को डाउट क्लियर नहीं कर सकते आप लोग. when there is a class ना, तो क्लास में क्या करोगे, whatever doubts you note it down. Okay, और क्लास के बीच में यदि करोगे, हमारे भी एक टाइम टेबल होगा, रूटीन होगा. जब मीन्स इस डेट में इस टाइम में हमें इतनी कोर्स कवर करने, और एंड विद इन 1 hour और 2 hour और 3 hours, whatever it may be. एंड इफ देयर इज इंटरप्शन इन बिटवीन ना, तो वी कैन नॉट कवर द कोर्स. तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, हमारे सिलेबस टाइम टेबल में गड़बड़ हो जाएंगे. तो व्हाट यू विल डू, आप लोग क्या करोगे, सारे जो डाउट्स है उस डाउट्स को आप नोट डाउन करोगे अपने रजिस्टर में. नोट डाउन करने के बाद व्हाट यू विल डू, नोट डाउन करने के बाद आप लोग को एक लिंक दिया जाएगा. ठीक है, द ईमेल आईडी, you have to forward those doubts to the email ID, on that email ID. Okay, what we will do, we will, because if I take the doubts and if I start a session ना, तो वो 2 घंटा 3 घंटा डाउट कभी खत्म ही नहीं होंगे. डाउट के ऊपर डाउट आएंगे. तो what you will do, आपने सारे डाउट्स, आप सारे बच्चों ने, आप when you are studying, you will be when you are studying hard, you will be having doubts. यदि कोई बच्चे का डाउट नहीं है, मतलब that person is not studying. I am telling you frankly, it happens like that only. If you're on the right path, तो hardships are there. If you're on the wrong path, there is no hardship, but permanent hardship will come. I'm telling you. प्रॉब्लम बाद में आएंगे, एकदम परमानेंट प्रॉब्लम आएंगे. लेकिन जो हार्ड वर्क करते हैं उसको टेम्पररी प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम चले जाते हैं, प्रॉब्लम चले जाते हैं. ओके, तो आप लोग क्या करोगे, वो सारे जो आपकी जो डाउट्स होंगे, वो डाउट्स को आप मेल करोगे. मेल करने के बाद वी विल लुक इनटू दोस डाउट्स, और वो सारे डाउट्स के एक वीडियो बनेगा. उस वीडियो को हम लोग क्या करेंगे, यूट्यूब में अपलोड कर देंगे. वहां पे क्या करोगे, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, यू गो थ्रू दैट सेशन, आपको सारे डाउट्स वहां पे दिख जाएंगे, क्लियर कर देंगे. वो डाउट्स देख लोगे एंड यू नोट इट डाउन. ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग डाउट्स क्लियर कर लेंगे. आई एम टेलिंग यू, तो इन दिस वे विल डू. और वीकली वन डे हम लोग क्या करेंगे, एक गूगल मीट सेशन करेंगे, जिसमें हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे, क्या सिलेबस में हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं. ठीक है, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, और एवरीथिंग वी विल डिस्कस. ओके, we will also talk about the books that you should follow for the subject. ठीक है, बुक्स के बारे में बोलेंगे. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, we will provide all the books. Okay, and the books will be e-books, so that you can read it. ठीक है, तो आप आजकल के जमाने में कोई हार्ड कॉपी लेने की जरूरत नहीं है. ई बुक्स आर मोर देन इनफ. ई बुक से पढ़िए. पहले क्या करेंगे, पहले व्हाट वी विल डू, वीडियो सेशंस, व्हाट एवर वीडियो सेशंस वी विल प्रोवाइड. ठीक है, तो आप वीडियो सेशंस पहले पढ़ेंगे. वीडियो सेशन या वीडियो लेक्चर पढ़ने के बाद व्हेन यू गो थ्रू द बुक ना, तो यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक्स वेरी फास्ट. लेकिन लेट मी टेल यू, रीडिंग बुक्स इज अ मस्ट. ठीक है, क्योंकि वीडियो सारे कुछ कवर नहीं करते, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बुक से मिल जाते हैं. तो आपको समझ में आ जाए, अरे सर ने वो नहीं कराया था, ये भी यहाँ पे मिल गया. इंपॉर्टेंट, यू विल नोट इट डाउन. ओके, तो बुक्स इज अ मस्ट. बुक्स आप लोग को पढ़ने पड़ेंगे. लेकिन आई विल ट्राई दैट नो टॉपिक शुड गेट मिस्ड आउट, बट इट माइट गेट मिस्ड आउट. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग. बुक्स पढ़ना एक, एंड देयर शुड बी अ हैबिट आल्सो विद इन यू. दैट मींस बुक्स पढ़ना है. बुक्स पढ़ने का हैबिट डालो. सॉफ्ट कॉपी, आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉफ्ट कॉपी, नॉट द हार्ड कॉपी. तो बुक्स विल प्रोवाइड फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. ओके, उसके बाद बुक्स की तो बात हो गई. नाउ देयर विल बी टेस्ट सीरीज. देयर विल बी टेस्ट सीरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम. ओके, तो ये टेस्ट सीरीज के बारे में भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. तो पहले हम लोग चलते हैं सिलेबस में. लेट्स गो टू द सिलेबस फर्स्ट. हाँ, तो दिस इज, यू कैन सी द सिलेबस ओवर हियर. ओके, सिलेबस फॉर रिक्रूटमेंट एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी. यहाँ पे आपने सिलेबस देख रहे हो. तो आप इस सिलेबस में क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट वाले प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड कॉम्बिनेटरिक्स.
यहाँ पे क्या है, ये प्रोबेबिलिटी स्टैट्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आई एम टेलिंग यू। टेल हियर, ये पूरा प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स की बात कर रहे हैं। conditional probability, mean, median, mode, standard deviation, random variables distribution, uniform, normal, exponential, Poisson, binomial। ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज कर, इसका कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, दोज विल डिस्कस। ओके, दोज इसके भी लेक्चर्स आएंगे, 2-3 लेक्चर्स आएंगे, उसमें हम पूरा ये टॉपिक को कवर कर देंगे। ओनली ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स। 2 to 3 लेक्चर्स में हम इसको पूरा कवर करेंगे। देन द परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, काउंटिंग, समेशन, दीज, ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं, कौन सी टॉपिक, ये परमुटेशन से, ये जो है ये क्या है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की टॉपिक है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टॉपिक को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। इस टॉपिक से काफी 6 to 7 क्वेश्चंस आएंगे ही, मस्ट है, ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स बहुत जगह यूज हो रहा है, हमारा एआई वगैरह हर जगह यूज हुए हैं। तो कैसे यूज हो रहे हैं, क्या हो रहा है, मीन मीडियन मोड की हमें तो पता, मीन मीन मतलब क्या, सम ऑफ द सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, मीन निकालते हैं। मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू, मोड, ये पता है, लेकिन ये कहाँ यूज होता है, कैसे इंप्लीमेंट करते, किस जगह पे डिटेल, किस तरह क्वेश्चन आएंगे, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कसिंग इन द लेक्चर सीरीज। ओके, तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें यूनिफॉर्म, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल कहाँ यूज होते हैं, हाउ दे आर यूज्ड, ठीक है। उसके बाद पॉइजन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैसे यूज होते हैं, पॉइजन, हाउ बाइनोमियल इज यूज, हाउ पॉइजन इज यूज, ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे का जिस तरह क्वेश्चन आते हैं विल बी डिस्कसिंग एंड विल बी सॉल्विंग दिस। इसके लिए हमें 2 to 3 लेक्चर्स लेंगे, 2 घंटा 1.5 घंटे के लेक्चर्स होंगे, या ऐसे 2-3 लेक्चर में हम लोग पूरा कवर कर देंगे प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स पे, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। विथ प्रीवियस क्वेश्चन, दिस टाइप क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम चले आते हैं इसमें बाइनोमियल, ये परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, काउंटिंग, समेशन, जेनरेटिंग फंक्शन, डिफरेंट रिलेशन, एसिम्प्टोटिक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी ये सारे मिला के 6 to 7, मिनिमम 6 to 7 क्वेश्चन आएंगे ही, इट्स मस्ट, ठीक है। एट द सेम टाइम आप लोग, यू ऑल आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, तो आप लोग को ये भी पता है जब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत जगह, कोई ऐसे टॉपिक नहीं है, कोई ऐसे पेपर नहीं जहां पे ये यूज नहीं हुआ, एक्चुअली दीज आर द कोर पेपर्स, इसके एप्लीकेशंस बहुत जगह है। वो हम लोग क्या करेंगे, व्हेन विल बी स्टडिंग ना तो इसके एप्लीकेशंस भी हमें पता चलेंगे, आई एम टेलिंग यू। ओके, तो इसके क्या करेंगे, इसके हम लोग क्या विल गो थ्रू दिस, और बुक्स के बारे में मैं थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू द डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक में क्या, लॉजिक, फंक्शन, मिनिमाइजेशन, ठीक है, के मैप यूज करेंगे, फिर एक्सनॉर के गेट्स क्या होते हैं, उसके बाद कॉम्बिनेशनल, सीक्वेंशियल सर्किट, फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नंबर रिप्रेजेंटेशन, फ्लोटिंग एंड अरिथमेटिक, जिस तरह क्वेश्चन, ये इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है जो माने कॉमन है, क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होंगे, ठीक है। ये 2 से 3 ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन दोज आर विल बी कॉमन, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करें, कौन सा बुक यूज करें, दैट विल मॉरिस मैन्यू, आप लोग को पता भी होंगे मॉरिस मैन्यू। वही कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के लिए भी मॉरिस मैन्यू यूज होंगे। तो इसमें किस तरह क्वेश्चन आएंगे जैसे टॉपिक है, कैन यू सी दिस, एटॉमिक मोड, इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद आएंगे मेमोरी, डीएमए से क्वेश्चन आते हैं, इंटरप्ट मोड से क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन से कुछ क्वेश्चन आते थे, कैश एंड मेन मेमोरी से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे यहाँ, ये जो टॉपिक मैंने रेड मार्क किए, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन आएंगे। ये भी आएंगे 2 to 3 क्वेश्चन फ्रॉम हियर, यहाँ से भी 2 to 3 क्वेश्चन आएंगे। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का तो मुझे आई डो नॉट हैव एनी नॉलेज, तो इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता। अब हम लोग आते हैं एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या क्या चीजें हमें पता होना चाहिए एज ए कंप्यूटर साइंस, जैसे एएम, एफएम, एएम देख रहे हो, पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डीपीएस के, डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम्स, एएस के, एफएस के, ये सारे हम लोग का जो नेटवर्किंग का पेपर है, नेटवर्किंग का पेपर जिसमें उसमें फ्रोजन की बुक, उसमें सारे ये टॉपिक्स अवेलेबल है। मॉड्यूलेशन स्कीम्स, फेज एंड फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, एएस के, एफएस के, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फेज शिफ्ट कीइंग, frequency shift keying, quadrature, QAM, can you see QAM, quadrature amplitude modulation, ML decoding, ठीक है। तो ये सारे हैमिंग कोड्स, एरर डिटेक्शन, ये सारे टॉपिक्स उस बुक में हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो टैननबॉम के बुक में स्पेशली, टैननबॉम इज वेरी गुड फॉर दिस। टैननबॉम, मैं भूल रहा था, ये बुक का नाम मैंने लिखा भी नहीं था, अभी दिमाग में है, टैननबॉम। टैननबॉम से सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इससे इससे हम लोग कुछ हम सारे नहीं तो कुछ तो हम लोग क्वेश्चन कर ही सकते हैं। एटलीस्ट यदि 7 to 8 to 10 क्वेश्चन, 8 to 10 से 10 to
8 to 10 क्वेश्चन आएंगे। 8 to 10 में एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चन तो हम लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स है, कुछ टॉपिक हमें छोड़ना ही पड़ेगा, बिकॉज आई वोंट बी टीचिंग ऑल दिस टॉपिक। अब हमें यहाँ पे टाइम पास भी नहीं करना है, जो टॉपिक नहीं आता तो कुछ भी उठा के वी हैव टू स्टडी। ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज ठीक है, ये करके हमारा टाइम वेस्ट होंगे। तो जो भी हमें आएंगे, लेकिन जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो मुझे आना चाहिए, वो कोई भी कॉर्नर से उस टॉपिक के कुछ भी क्वेश्चन है वी कैन सॉल्व, इस तरह से हमें प्रिपरेशन करना है। ठीक है, ये नहीं जो टॉपिक सारे कर लिए और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। जो भी टॉपिक करेंगे उसका उसको कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन है वी कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो ये मेरा टारगेट होना चाहिए, ये मेरा भी टारगेट है, ये आपकी भी टारगेट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें तो हम लोग कर ही सकते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन देखो, डिजिटल कम्युनिकेशन ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। ये जो टॉपिक, ये जो पार्ट है यहां से यहां तक, ये पार्ट हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन डिजिटल कम्युनिकेशन से सारे पार्ट हम लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो विल बी कवरिंग ऑल दिस पार्ट। ये फिजिक्स की है एक्चुअली, थोड़ा फिजिक्स इज इन्वॉल्व, फिजिक्स इज इन्वॉल्व, तो थोड़ा मजा भी आएगा। फिजिक्स इज ऑल्सो वेरी गुड, फिजिक्स इज इन्वॉल्व, तो हम लोग ये करेंगे। अब आ जाता है प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। आप प्रोग्रामिंग में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, जावा, .NET, ओपन सोर्स PHP, पाइथन, गोलैंग, नोड जेएस, ये इतनी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप तो घबरा जा रहे हो, जितने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं इतने सारे सीखने का। आपको क्या करना है, सी लैंग्वेज आपको आना चाहिए। सी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सी आपको आता भी होगा। जावा का नोड लेक्चर आपका बनेगा। उसके बाद ये जो, कैन यू सी दिस गोलैंग, दिस इज एक्चुअली सिमिलर टू सी लैंग्वेज। ओके, तो हम क्या करेंगे, गोलैंग को पढ़ेंगे, गोलैंग एंड पाइथन। ठीक है, गोलैंग, पाइथन और ओपन सोर्स PHP, ये सब जो जावा, .NET, इससे जिस तरह क्वेश्चन है हम लोग एक एक लेक्चर करके। पाइथन के लिए तो 2 to 3 लेक्चर्स करेंगे, 2 to 3 लेक्चर्स, मैं लेक्चर नंबर्स भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, गोलैंग के लिए 1 लेक्चर इज मोर देन एनफ। एक लेक्चर में समझ में, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आ जाएगा, सब आ जाएगा। सी लैंग्वेज आप लोग का था तो यू कैन डू। नोड जेएस जो बैकग्राउंड में चलते जावास्क्रिप्ट में, ये तो नोड जेएस, ये देखो नोड जेएस इज जावास्क्रिप्ट। तो ये सारी चीजें हम लोग को करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में करेंगे, डू नॉट वरी। ठीक है, तो जो मैं पढ़ाऊंगा, द वे आई विल टीच, ठीक है, तो आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, एंड कोर कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम यू विल बी स्टडी गोइंग थ्रू द बुक्स आल्सो। ठीक है, विल बी प्रोवाइडिंग यू द बुक्स आल्सो, डू नॉट वरी अबाउट इट। उसके बाद कुछ टॉपिक्स है, फंक्शंस जो करना है, रिकर्सन, पैरामीटर पासिंग, स्कोप बाइंडिंग, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, एरे, स्टैक, ये सारे क्या हो गए, ये स्कोप बाइंडिंग ये अलग चीज है। ये जो स्टैक यूज, ये हो गया डेटा स्ट्रक्चर। और ये सारे इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। C++ या जावा में जहां यूज होता है ये पॉलीमॉर्फिज्म, कहाँ एक्सट्रेशन क्या है, एनकैप्सुलेशन क्या है, इसके ऊपर। ठीक है, तो हमारे क्या 2 पेपर है यहाँ पे, प्रोग्रामिंग प्लस डेटा स्ट्रक्चर। तो प्रोग्रामिंग में क्या करेंगे, गोलैंग, 1 सेकंड, पाइथन। उसके बाद कौन कौन सा टॉपिक है, देन जावा, PHP, ठीक है, नोड जेएस। तो इसके हम लोग लेक्चर सीरीज आप लोग के पास लेके आएंगे। यू हैव टू गो थ्रू दैट लेक्चर सीरीज, यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, क्योंकि इसके द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग से आते क्या है, दैट इज आल्सो द थिंग ना। इससे एक्चुअली आएंगे यहाँ से ही, इससे आएंगे आपके आउटपुट्स, और ये जावा PHP, इससे आएंगे कोर कॉन्सेप्ट्स, थ्योरी, मल्टी थ्रेडिंग, MVC, बहुत सारे बातें हैं। ठीक है, वो सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। ठीक है, थ्योरी है ये, दिस इज थ्योरी, एंड ये इससे आएंगे आउटपुट्स, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करने पड़ेंगे ऐसे करके, द वे एंड सेइंग। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया ऑब्जेक्ट्स क्लासेस, ये तो हो गया आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उप्स, एक बार मुझे लेट मी रब इट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, ये भी आपके, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। मैंने सारी चीजें इन्होंने डाल दी है, स्टेप बाय स्टेप इन्होंने क्या किया, सारी चीजें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, उसके बाद आपके क्या, डेटा स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें आपको आना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग, ये सारे आजकल कोई भी वेर एवर यू गो, आप जरूरी नहीं गवर्नमेंट जॉब, आप प्राइवेट जॉब में जा रहे हो, इसके एप्लीकेशन आपको हर जगह जरूरत होती है। ये जो आपके पीछे आगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, सारे लिंक्ड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें करना। उसके बाद एल्गोरिथम्स आ गए, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
इसमें क्या एसिम्प्टोटिक नोटेशन, नोटेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस का हमें टेंशन नहीं है, टाइम कॉम्प्लेक्स, वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट एंड एवरेज डिजाइन, ग्रीडी अप्रोच के टेक्निक्स, जैसे आपके ग्रीडी अप्रोच में बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, ये ग्रीडी अप्रोच की यू कैन से प्रिम्स एल्गोरिदम, क्रूस्कल्स एल्गोरिथम, दिस इज आल्सो ग्रीडी अप्रोच। और ग्रीडी अप्रोच में ये भी होते हैं, ये क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम, ये सारी चीजें हमें कॉन्सेप्ट जानना है, फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम होता क्या है, ये नहीं मीन्स उसमें 2-3 लाइन लिख दिए और बस ये होता है फ्रैक्शनल नैपसैक, उससे नहीं होते। ठीक है, हमें क्या करें, एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे ना, जब आप घर पे सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में जाएगा, अच्छा इसके मतलब इसकी मीनिंग ये है, यू हैव टू अंडरस्टैंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, अर्नूथ मॉरिस प्रैट, क्या क्या बहुत सारी चीजें डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, वो सारी चीजें हमें कोर आना चाहिए, डिवाइड एंड कॉन्कर, ट्री एंड ग्राफ ट्रावर्सल, ठीक है, ये सारे कनेक्टेड कंपोनेंट, स्पैनिंग ट्रीज, शॉर्टेस्ट पाथ, इसमें फिर हैशिंग से क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ग्रीडी से भी आ जाते हैं, अंडरस्टूड। उसके बाद आपको एक एल्गो दे देगा, या कुछ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर दे देगा, बोलेगा जो उसका ये निकालो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एल्गोरिथम में। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कैन यू सी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आपको एक 3-4 लाइन का प्रोग्राम दे देगा, बोलेगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये सारी चीजें भी आपको निकालने पेपर में देंगे, तो यू हैव टू फाइंड आउट ऑल दोज थिंग्स आल्सो। उसके बाद सॉर्टिंग, सॉर्टिंग से बहुत सारा सॉर्टिंग होगा, उसके बेस्ट केस क्या है, एवरेज केस क्या है, वो सारे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, अपर एंड लोअर बाउंड, बेसिक कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्सिटी, पी है, उसके बाद पी हार्ड, एनपी कंप्लीट, या हाँ उसमें ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, एनपी हार्ड है, तो इस ये क्या चीजें हैं, ये बहुत सारी चीजें आप लोग को नहीं पता है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एल्गोरिथम इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई एम टेलिंग यू, ठीक है, तो यू हैव टू डिस्कस दिस थिंग। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेट मी टेल यू फ्रैंकली, ठीक है, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस सारे टॉपिक में, ठीक है, आई हैव ऑल्सो क्रैक्ड वेरियस एग्जाम्स, ठीक है, तो मुझे पता है ये सारे टॉपिक कितने मजेदार है, ठीक है। पहले क्या होता था, व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन, ऑन व्हेन आई वाज इन पोस्ट ग्रेजुएशन, मेरे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए थे, उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग, उसके बाद जब खत्म हो गए सारे कॉलेज, उसके बाद मैंने ये एग्जाम्स के लिए मैं प्रिपरेशन खुद ही की मैंने, व्हेन आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, ठीक है, तो मैंने ये सारी चीजें पढ़े प्रॉपरली, तो मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगे, मुझे तो भूल ही गया था, मुझे मैंने इट शुड बी लाइक दैट, योर प्रिपरेशन आल्सो शुड बी आल्सो लाइक दैट, मैं खाना खाने भूल जाता था, when I used to study all these things, इतने इंटरेस्टिंग, इतना मजेदार, इतने engrossing है द सिलेबस इज सो engrossing, तो आप लोग को भी ऐसे ही लेना है, engrossing, ठीक है, आप लोग को भी ऐसे ही पढ़ाई करना है, मीन्स आपको पता नहीं चला रात कब हुई, दिन कब हुई, इस तरह से आप लोग को पढ़ाई करना है, आई एम टेलिंग यू। हाँ, और उसके बाद क्या है, 8 आवर्स स्लीप इज ए मस्ट, 8 आवर्स स्लीप इसलिए मस्ट है, आपका ब्रेन इज ए इंजन, मशीन है एक, मशीन को कूल नहीं करोगे तो फिर ब्रेन कैन नॉट टेक द थिंग्स, आई एम टेलिंग यू। और आपको व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टडी मोर, जितनी देर तक आप पढ़ सकते हो पढ़ो। मोहम्मद ने एक बोला, मोहम्मद, यू नो दैट बॉक्सर, फेमस बॉक्सर, उन्होंने उनसे एक बंदे ने पूछा, आप कितने देर तक प्रैक्टिस करते हो, यू नो व्हाट ही रिप्लाइड, ही सेड, जब तक मुझे पेन नहीं होता तब तक मैं प्रैक्टिस करते रहता हूँ। तथा सेम थिंग्स शुड बी अप्लाइड टू फॉर एवरीबॉडी, आई एम टेलिंग यू, जब तक आपको मन करे, जब तक करते रहो, जब तक आपका पीठ में दर्द ना हो, तब तक आप पढ़ते रहो, ठीक है, देन ओनली यू कैन क्रैक द एग्जाम, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। आप एक 4-5 महीने यदि इफ यू स्टडी हार्ड, तो फिर बहुत सारे बच्चे जो लास्ट अटेम्प्ट है, तो आप लोग को तो करना ही है, सबको, एवरीबॉडी शुड थिंक दैट दे इट इज देयर लास्ट अटेम्प्ट। कोई यदि 24-25 साल के बच्चे सोच रहे जा रहे मेरे लिए 5 साल है, 5 साल में ये भी हो सकता है कोई वैकेंसी ना आए फिर, ठीक है, 4 साल बाद आए, या 5 साल लास्ट अटेम्प्ट हो आपका, इसके बाद, ठीक है, हर साल वैकेंसी नहीं आता, और जरूरी नहीं लाएंगे, ठीक है, क्या होंगे कुछ भी नहीं पता, तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सारी चीजें, तो यू ऑल हैव टू थिंक दैट मीन्स दिस इज आवर लास्ट अटेम्प्ट एंड यू हैव टू स्टडी, okay, or why I have taken, why I am taking the pain, why I am taking the pain to launch this series, I am telling you, because I am interested, I love the course content, I have also studied in this way, I have also seen the whole syllabus, I have gone through the whole syllabus, मैंने खुद पढ़ाई की है, तो I know the things, ये कहाँ से किस तरह क्वेश्चन आएंगे, तो आई विल बी डूइंग इन दैट वे। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ मेहनत करना है, मेहनत नहीं करोगे तो नहीं होंगी, ठीक है, दैट्स द थिंग। उसके बाद हम लोग चले थे कंपाइलर डिजाइन, ये हम लोग लास्ट में करेंगे टॉपिक, आई एम टेलिंग यू, इट्स बिट कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो, और इसके बाद लास्ट में करेंगे, दिस वे आई विल डू 2 to 3 क्वेश्चन आएंगे, ये बाद में करेंगे, ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, बेसिक्स ऑफ कोड ऑप्टिमाइजेशन, थोड़ा सा लंबा भी है, ये देखने में छोटा सिलेबस लग रहा है, लेकिन ये लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है, 2 to 3 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आईपीसी, थ्रेड्स क्या होते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग, मेमोरी, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग को इससे 6 to 7 क्वेश्चन विल कम फ्रॉम हियर, आई एम टेलिंग यू,
6 to 7 क्वेश्चंस। तो आपको ये भी बहुत अच्छे से करना है। इसके लिए हम लोग जो गैल्विन का बुक फॉलो करेंगे, आई टेल यू लेटर ऑन ऑल्सो, गैल्विन का बुक हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, इसमें मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी में कुछ मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी कैसे, ये हमारे हमारा हार्ड डिस्क का मेमोरी को भी वी कैन यूज द हार्ड डिस्क, पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क आल्सो एज वर्चुअल मेमोरी। तो हाउ विल यूज, ठीक है, तो व्हाट इज द मैथमेटिकल फार्मूला टू यूज। ठीक है, तो ये नहीं जो मैं चाहूंगा एक टीबी का हार्ड डिस्क है तो मैंने 500 GB मैंने डाल दिए एज इन द रैम, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर लाइक दैट। ओके, इज नॉट पॉसिबल। तो उसकी भी एक फार्मूला है। ठीक है, तो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज थिंग्स। फिर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, क्या किस तरह की सिक्योरिटी होता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एसीएल वगैरह, ये सारे के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, एसीएल्स। उसके बाद थ्रेड्स, थ्रेड्स क्या है, थ्रेड, अब थ्रेड है प्रोसेस, थ्रेड इज ए लाइट वेट प्रोसेस। ठीक है, तो थ्रेड के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। थ्रेड क्या है, थ्रेड इज ए लाइट वेट प्रोसेस, वेट प्रोसेस। ओके, तो आप आजकल देखो यूपीआई लाइट, इतना सारी चीजें आ रहे हैं, मतलब क्या हो रहे हैं, बट क्या होता है, इट इज टेकिंग ए लॉट ऑफ मेमोरी। तो हम लोग क्या करें, लाइट बोल के तो थ्रेड यूज करेंगे तो इट इज डूइंग द सेम टास्क, इट इज डूइंग द सेम टास्क एंड एज वेल इट इज लाइट, इट विल एक्ट वेरी फास्ट। लाइट मतलब ये नहीं जो हल्का हो रहा, ठीक है, तो मैंने वो एक्ट बहुत, प्रोसेसिंग विल बी वेरी फास्ट, दैट्स द थिंग। उसके बाद हम लोग आ जा रहे हैं डेटाबेस में। प्लीज वेट, लेट मी रब इट। लेट मी रब इट। नाउ वी आर कमिंग टू डेटाबेस। डेटाबेस में ईआर मॉडल, ठीक है, तो रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल अलजेब्रा, टपल कैलकुलस, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमारा टपल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, नॉर्मल फॉर्म्स, नॉर्मलाइजेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से ऑलरेडी एक टेबल होते हैं, उसको एनालाइज करना होगा, वो रिलेशनशिप देख के ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, ये फर्स्ट नॉर्मल, इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग ये नॉर्मल फॉर्म्स करेंगे। ठीक है, क्वेरी, एसक्यूएल के भी आएंगे बहुत सारे क्वेश्चन। उसके बाद कैलकुलस, टपल कैलकुलस, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। फाइल स्ट्रक्चर, सीक्वेंशियल इंडेक्सिंग, बी प्लस ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। तो हम यदि कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे ना, तो फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, यूं अरे ऐसे इस तरह क्वेश्चन है, विल बी सॉल्विंग इन दिस मेथड, तो हम लोग को ऑटोमेटिकली फील आ जाएगा। ट्रांजैक्शन, कंकरेंसी कंट्रोल, नो सिक्वल डेटाबेस, ये एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, दिस इज अ न्यू वन, न्यू वन, न्यू, सॉरी वन सेकंड, न्यू वन, नो सिक्वल डेटाबेस। मतलब क्या है नो सिक्वल, मतलब क्या, सिक्वल नहीं, वो नहीं, उसका नॉट ओनली सिक्वल, सिक्वल के साथ भी कुछ और टेक्निक्स आ जाएंगे। हमारे हमारे डेटाबेस को ये डेटाबेस को डेटाबेस ट्रांजेक्शन को इजी करने के लिए। ठीक है, बिकॉज वी विल बी मैनिपुलेटिंग डीएमएल, डीएमएल हम यूज करते हैं, एक डीडीएल होते हैं, यू ऑल नो, एक होता है डीएमएल। तो हम डीएम एक्चुअली इज ए नो सिक्वल डेटाबेस, इट इज फॉर डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में कैसे हम डेटा मैनिपुलेट करेंगे, डेटा को हम एक्सेस करेंगे बेस्ड ऑन कंडीशंस, क्योंकि डेटा इज ह्यूज, डेटा इज नॉट स्मॉल, डेटा इज ह्यूज। ठीक है, तो फिर हम कैसे उसको एक्सेस करें, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नो सिक्वल डेटाबेस यूज करेंगे। उसके बाद ये क्या है, लेट मी रब इट एंड सी। क्वेश्चंस ऑन इंटरनल पोस्टग्रेस सीक्वल, ठीक है, तो इसके, ठीक है, तो इसके ऊपर भी बहुत सारे, इसके ऊपर पोस्टग्रेस सीक्वल, ये सीक्वल का एक, ठीक है, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज ऑल्सो मोस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, आई एम टेलिंग यू। हाँ, इसके बाद हम लोग आगे इंफॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, इसको हल्के में लेते हैं, इस चीज को, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हल्के में नहीं लेना है, इससे भी 6 to 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, आई एम टेलिंग यू। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हल्के में कोई भी नहीं लोगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, 5 to 6 क्वेश्चन। ओके, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिर्फ नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लस ये जो कोर्स है सॉफ्टवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये भी इन्वॉल्व है। फिर कोडिंग टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, उसके बाद साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत सारी बातें हैं, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। अंडरस्टूड, मुझे प्रोसेस लाइफ साइकिल कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैनेजिंग द प्रोजेक्ट, डिजाइन, कोडिंग, उसके बाद इंजीनियरिंग, उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें के ऊपर टॉपिक, रिवर्स इंजीनियरिंग, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आई एम टेलिंग यू। थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ रिवर्स इंजीनियरिंग, तो हमें ये इस टॉपिक को भी हल्के में नहीं लेना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई एम टेलिंग यू। उसके बाद हम लोग का आ जाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 5 to 6 क्वेश्चन रहेंगे, मस्ट है। ओके, उसके बाद आ गया कंप्यूटर नेटवर्क्स, दिस इज अ बिट
द ह्यूज सिलेबस, सिलेबस इज ह्यूज। अब लेकिन 7 to 8 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे। ये देख रहे हो फ्लो एंड एरर कंट्रोल टेक्निक्स, एरर कंट्रोल टेक्निक इधर भी होंगे। आप लेट मी सी ओवर हियर, लेट मी सी, कहीं देखा था मैंने अभी, कहीं देखा था, आई कैन नॉट सी, बाद में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एरर कंट्रोल टेक्निक, ठीक है, हैमिंग कोड वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पढ़ेंगे। राउटिंग एल्गोरिथम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंजेशन कंट्रोल, टीसीपी यूडीपी, टीसीपी हमारे क्या होंगे, क्या यूडीपी कनेक्शन होता है, टीसीपी का कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं, सॉकेट्स, IP4 IPv6 की डिफरेंस, IPv4 कहाँ यूज होता है, IPv6 कहाँ, वर्जन 6 इंटर प्रोटोकॉल का, उसके बाद एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ICMP, DNS, SMTP, इस सब के फंक्शंस पूछते हैं। पॉप, पोस्ट पॉप क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर फॉर DNS, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ICMP, ओके, फाइल ट्रांसफर, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सब के फंक्शंस हम लोग को जानना जरूरी है। आपको क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे इसका फंक्शन क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक बताना है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिस कॉन्सेप्ट ऑफ हब्स स्विचेस क्या है, गेटवेज रूटर्स क्या है, वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। पब्लिक की क्या है, प्राइवेट की क्या है, ठीक है, उसके बाद हमारे RSA, कुछ एल्गोरिदम्स भी हमें जानना पड़ेगा, RSA एल्गोरिदम, DSA, ठीक है, या डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, DES। तो ये इस तरह का बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये नहीं जब मीन्स हुड़दबंग स्टाइल से पढ़े और खत्म कर दिए कोर्स को, ऐसे नहीं होंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी ह्यूज कोर्स, आई एम टेलिंग यू। तो ये सारी चीजें आप लोग करना पड़े। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, और व्हाट विल हैपन, जैसे ही हमने टॉपिक ले लिए, बहुत हमारे थोड़ा सा प्रॉपर, हमारे काफी टॉपिक मैंने कर लिए, सपोज कंप्यूटर नेटवर्क जैसे ह्यूज सिलेबस कर लिए, उसके बाद हमारे एक टेस्ट आएगा, उस टेस्ट को आप दोगे 50 मिनट्स में या 60 मिनट्स में 70 क्वेश्चन, सपोज है 60 मिनट में 70 क्वेश्चन, तो उसको दोगे तो फिर देखोगे वहां पे ऑटोमेटिकली आपको क्या करोगे, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस, गेट के क्वेश्चंस में जिस तरह क्वेश्चन आए, ठीक है, नेट में जिस तरह, तो वी विल फॉलो ऑल दोस प्रीवियस जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उससे से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आएंगे। तो उससे जब करोगे तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएंगे, यू विल अंडरस्टैंड यू आर लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो ठीक है, तो इन दिस वे वी विल डू, अंडरस्टूड। उसके बाद वेब टेक्नोलॉजी, तो ऐसे करके ये करेंगे। उसके बाद वेब टेक्नोलॉजी आ रहा है, HTML5 CSS XML बेसिक कॉन्सेप्ट, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, ये सारे MVC आर्किटेक्चर, ये देख रहे हैं MVC आर्किटेक्चर, आई वाज टॉकिंग इन जावा, तो ये सारे जावा के भी बहुत सारे बातें यहाँ पे आगे इस जगह में। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें भी आएगा 2 to 3 क्वेश्चन आएंगे वेब टेक्नोलॉजी से, 2 to 3 क्वेश्चन। क्यों आप बोलोगे जब 2 to 3 क्वेश्चंस, क्यों, क्योंकि वो आप जब आप व्हेन यू विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ना, तो आपको ये सब सिखा दिया जाएगा। HTML CSS5 ये सब बहुत बड़ी चीज नहीं है, अंडरस्टूड। उसके बाद आ गया साइबर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में क्या है, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस ब्लॉकचेन, AI एटसेट्रा। तो हमें ये सारी चीजें जानना जरूरी है। AI इज द नीड ऑफ द आवर। AI आजकल हर डिवाइस में, हर जगह हम AI यूज कर रहे हैं, या इन सम अदर वे। जैसे आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आपने क्या किया, आपको उस जगह के बारे में पता नहीं, आपने व्हाट यू डिड, आपने गूगल मैप्स में डाले, एंड यू आर गोइंग विद द हेल्प ऑफ गूगल मैप। गूगल मैप क्या कर रहे हैं, यूजिंग AI, दे आर यूजिंग द AI ओनली। ठीक है, ब्लॉकचेन कैसे, ब्लॉकचेन इज फॉर डेटाबेस में ये ब्लॉकचेन वगैरह यूज होते हैं। तो ब्लॉकचेन कैसे यूज हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI में गेम प्लेइंग क्या होते हैं, गेम थ्योरी, कहाँ गेम प्लेइंग यूज हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इन क्वींस प्रॉब्लम की कंडीशंस क्या है, वो सारे चीजें क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। इन क्वींस प्रॉब्लम इस तरह का एक दे दीजिएगा, 4x4 ऐसे करके एग्जाम्पल ले लो। 4 क्रॉस मैंने कितने हैं, 16, एक देखो 16 मैंने बना दिया, 16 स्क्वायर्स आ दिया, 16 स्क्वायर्स, इट इज लुकिंग लाइक रेक्टेंगल बट देयर इज 16 स्क्वायर्स। आप क्या करें, 4 क्वीन है, 4 क्वीन है ना, तो ऐसे एग्जांपल ले लो, Q1 Q2 Q3 Q4। आप 4 क्वीन को हमें प्लेस करना है। अब आपको पता है, आप लोगों ने चेस खेला है, चेस खेल कोई ना कोई तो खेले हो गए आप लोग, है। तो एक सपोज एक क्वीन है, यहाँ पे क्वीन को प्लेस किया, तो क्वीन कैन गो दिस वे, क्वीन कैन गो दिस वे, queen can go diagonally, and queen can go this way, but queen cannot go at this place, queen cannot go at this place automatically, okay। तो it can traverse in 3 ways। तो हमें क्या करना है, Q1 Q2 Q3 Q4, 4 क्वीन है, 4 क्वीन को हमें ऐसे करके प्लेस करना है। Q1 को यदि आप यहाँ पे Q2 डाल दोगे, तो Q1 will cancel, will
कैंसिल Q2, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। Q1 Q2 Q3 Q4 क्या ऐसे करके प्लेस करने हैं जब इनसे ऑल आर अकोमोडेटेड एट द सेम प्लेस, तो इसके ऊपर क्या कंडीशंस होते हैं ये भी हमें जानना पड़ेगा। उसके बाद एक होते एट पजल प्रॉब्लम, या ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखो, 4 क्वीन 8 पजल, ठीक है। इस तरह का बहुत सारी चीजें आएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हमें एआई टेक्नोलॉजीज, उसके बाद आप ले लो सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपर, तो आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पूछा जाएगा। चाहे वो एआई ले लो, थोड़ा ब्लॉकचेन ले लो, आईओटी ले लो, तो हम क्या करेंगे उतने करा देंगे जो वही से क्वेश्चन पूछे। इट्स लाइक दैट, आपको वहां से ही क्वेश्चन पूछा, ऐसे करके हम लोग प्रिपेयर करवा लेंगे आप लोग को, ठीक है। कुछ हम लोग मैथमेटिकल, जहां पे मैथमेटिक्स की जरूरत हो हमें मैथमेटिक्स भी यूज करेंगे, बिकॉज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, जो जो एक्चुअली वही आते हैं पेपर में। थ्योरी मतलब डॉट थ्योरी नहीं आ जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे वो सारी चीजें करेंगे। उसके बाद सर्वर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, कौन सा प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज करते हैं, टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज, क्या क्या वल्नरेबिलिटी, कौन कौन सा वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। तो ट्रोजन हॉर्स है और भी बहुत सारा है, लॉजिक बॉम्ब, तो इस सब बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, अंडरस्टूड। उसका क्लाउड टेक्नोलॉजी, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर भी हम लोग क्लाउड के ऊपर एज टेक्नोलॉजी का कंप्यूटिंग आजकल का नीड होता आ रहा है, एज का कंप्यूटिंग चल रहे हैं, तो ये क्या होते हैं क्या नहीं, तो ये सारे बारे में आप हाउ, इसमें कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल, इसमें ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू ऑल द थिंग्स आई एम टेलिंग यू। तो ऐसे करके हम लोग करेंगे। ऐसे करके एक लेट मी सी द अदर कोर्स, nobody should go because I will be discussing something more, okay। तो उसके बाद ये जो सिलेबस है प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटजी वो सेम है। यहाँ पे एक 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 नया टॉपिक है क्या, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। जैसे आप लोग बहुत सारों ने तीनों पोजीशन को फिल किए, इट हैपन, हाँ, मेनी पीपल। तो कोरिलेशन क्या होता है, रिग्रेशन आप लोग को ये पता ही नहीं, कोरिलेशन रिग्रेशन न्याय मैथ्स तो किए हो, लेकिन कोरिलेशन कहाँ यूज हो रहा है, रिग्रेशन कहाँ यूज हो रहा है, यू डू नॉट नो। तो यू हैव टू गो थ्रू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है। रिग्रेशन रिग्रेशन क्या होते हैं, हम उसमें प्रेडिक्ट करते हैं, फ्यूचर को हम प्रेडिक्ट करते हैं थ्रू रिग्रेशन, जहां पे आउटपुट इज न्यूमेरिकल। जैसे एग्जांपल ले लो, आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो इसको प्रेडिक्ट करने के लिए हम रिग्रेशन एनालिसिस यूज करेंगे। कोरिलेशन क्या होगा, दो वेरिएबल आर कोरिलेटेड और नॉट, पॉजिटिव कोरिलेटेड और नेगेटिव कोरिलेटेड, ये सब निकालने के लिए हम कोरिलेशन यूज करेंगे। तो ये सारी चीज, प्लीज वेट फॉर अ सेकंड। सो you see over here digital computer principles. Okay, so there is K-map, okay, simplification, all these things. So these two, and computer organization architecture, these are common. These are common for scientist B and as well as scientific technical assistant A. Okay, course is same, and programming data structure and object oriented programming, the same, the topic is same. Okay, programming data structure and object oriented programming. Over here what is said, programming data and data structure, Golang, C, Java, .NET, PHP, Python, Node.js, everything is at the same place. It has been bifurcated into two parts. Simple. See, programming in data set, programming in C. Programming in C is not there. Yeah, in the scientist B part. Okay, programming in C. Functions, regression, parameter passing, scope, binding, abstract data types, arrays, stacks, queues, trees, binary search trees, binary, everything is there. Programming in C you have to study. That's the thing. So we'll be releasing few playlists of programming in C also. You have to go through it. What comes in the programming C mainly, mainly the outputs. Outputs are very important. You have to go through the outputs. So we'll be coming with outputs also, and from those first we will be coming with the basic concepts. After covering the whole C program, I will be covering in 2 or 3 classes. I'm telling you. Means the class may be of 2 hours or 1.5 hours, and we'll be covering in 2 or 3 classes, and after that we'll be coming with the type of question that comes in the paper in C, and we'll be practicing all those questions, and in that way we will be doing the things. Okay, then stacks, queues, linked lists, these are all the parts of data structure. These are very important, very interesting also. That nobody is going to ask you the codes, nobody is going to ask you to write the codes, okay, only objective questions. But if your concepts are not clear, you can't do all those things. You cannot attempt, that's the thing, because you know that there is a negative marking for one question. 0.25 is a negative marking. Okay, so you have to be very careful also. You cannot do it as usual, चलो let's take it, or do not do, because हमेशा जो हम अंदाज में करते हैं वही गलतियां होते हैं, ठीक है। we are not born with a diamond spoon. Okay, we have to work hard, and if you want to achieve something, we have to work hard. तो अंदाज से कुछ करोगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, we will get nothing.
तो डू नॉट डू सो, उस तरह के हैबिट्स आप लाओ। हाँ, यू कैन डू वन थिंग, एलिमिनेशन कर सकते हो। जैसे देयर इज ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन व्हिच इज 4 पार्ट्स, ओके, 4 पार्ट्स, तो यू कैन एलिमिनेट फ्यू पार्ट्स। जैसे ये वाला नहीं होगा, ये एक ए ऑप्शन नहीं हो सकता, सी ऑप्शन नहीं हो सकता, नाउ बी एंड डी। इन दैट वे बाय सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन इट कैन बी द प्रोसीजर। सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन, कीप इन माइंड, सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन, सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन, ओके। क्योंकि क्या होता है, जब ऑब्जेक्टिव्स आते हैं तो हमें, हमारे जब प्रिपरेशन रहता है तो हमें एक चीज पता चल जाता है, ये आंसर नहीं हो सकता, दूसरा आंसर नहीं हो सकता है। नाउ देयर इज अ डाउट बिटवीन द टू, ओके, उस पर थोड़ा सा हमें दिमाग लगा के वी कैन डू द प्रॉपर थिंग। एंड इफ नो नॉलेज, हमें पता ही नहीं है, फिर वी शुड नॉट टेक दैट थिंग, वी शुड नॉट गो टू दैट क्वेश्चन, वी शुड नॉट मीन्स अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, दैट्स द थिंग, कीप इन माइंड। उसके बाद एल्गोरिदम वही सेम ही है जो आपके उसमें साइंटिस्ट भी में, सेम सेम। डेटाबेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो देयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, दिस इज अ टॉपिक। इसमें क्या हो गया, इसमें आपका इस सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, दिस वन इज एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप असेंबलर्स, लिंकर्स, लोडर्स, ये सारी चीजें हैं। इसके उसके बाद आ जाएंगे आपके, ये देखो ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्चुअली और ऑपरेटिंग सिस्टम इज द टॉपिक। यहाँ से 1 क्वेश्चन आएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर से ओनली 1 क्वेश्चन, ओनली 1 क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम से 5 to 6 क्वेश्चन, यही एक जगह है, 5 to 6 क्वेश्चन, ठीक है। नाउ इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द सेम, कोर्स इज सेम। द कंप्यूटर नेटवर्क्स आल्सो यू हैव डिस्कस्ड, द कोर्स इज सेम एज डिस्कस्ड। वेब टेक्नोलॉजी द कोर्स इज सेम, ओके। तो इन दिस वे वी आर गोइंग टू डू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे तो पहले क्या करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद वी विल बी कमिंग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिस तरह क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर, मतलब ये नहीं जो ओनली एनआईसी, यू विल बी कवरिंग नेट एग्जाम्स आल्सो, विल बी कवरिंग डीआरडीओ आल्सो, विल बी कवरिंग दैट गेट एग्जाम्स आल्सो। तो उससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विल बी कवरिंग दोज थिंग्स, ओके, एंड विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज क्वेश्चन। तो उससे हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगे, तो विल बी डूइंग इन दैट मैनर। उसके बाद देयर विल बी टेस्ट, ओके, एंड डू नॉट टेक दोज टेस्ट लाइटली, आई एम टेलिंग यू, do not take the test lightly. The test will be mind boggling test, okay, and the passing marks for the test will be 70%. We have kept the percentage high. You must be thinking the why did you keep the percentage so high, so that you can study hard, क्योंकि 70% लाना मतलब 70% से above जैसे आएगा तो you can think that you may be selected, आप select हो सकते हो, that's why you kept the percentage high, understood। And for the test we are charging ₹50 for each test। हमारे जो टेस्ट आएंगे उसके 50 रुपीज, बिकॉज वी आर हायरिंग पीपल फ्रॉम आउटसाइड टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। मीन्स एनआईटी के कुछ बंदे हैं, ठीक है, दोज हु हैव क्वालिफाइड दिस टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस, वी आर इन्वॉल्विंग दोज पीपल आल्सो टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट, सो दैट आवर टेस्ट इजी नहीं होंगे। इफ यू अपियर फॉर द टेस्ट ना, आपको पता चल जाएगा किस तरह क्वेश्चन आते हैं, और उससे 2-3 चीजें पता चलेंगे टेस्ट से। व्हाट आर द थिंग्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू हैव स्किप्ड एनी टॉपिक, ठीक है, ऑन एक 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 सब एक चैप्टर है, उसमें कोई टॉपिक यदि स्किप किया तो फिर व्हेन यू आर अपियरिंग फॉर द टेस्ट ना, तो यू विल कम टू नो ऐसे भी कोई टॉपिक है, आप कुछ कुछ ऐसे भी होता है जो आपने नाम सुना ही नहीं है, एंड द टॉपिक इज प्रेजेंट एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो टेस्ट से ये सारी चीजें पता होगा, ठीक है। तो वी आर चार्जिंग ₹50, ओनली ₹50 फॉर द टेस्ट ओनली, नथिंग एल्स, because it is a very tedious job also, and the questions will be mind boggling, let me tell you। इट्स नॉट लाइक दैट, मीन्स आप लोग को क्वेश्चंस ऐसे दिए, आप लोग 70%, 80%, 90% लेके आ गए, एंड व्हेन यू अपीयर इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनेशन, व्हेन यू सी द टेस्ट, तो योर माइंड गोज ब्लोन अवे, जो इस तरह का क्वेश्चन तो हमने की नहीं है, एंड एट लास्ट यू वुड गेट नथिंग। तो हमारे एम ही है दैट देयर आर 598 कैंडिडेट्स, 598 candidates, not 598 vacancies, okay, and we want all 598 from our Swaroop Gorai YouTube channel. So we will be working hard for that, do not worry about it, okay। And there is a WhatsApp group, the link is given in the description box, you should go through it, and there is a mail ID also, let's crack NIC 2023 for the doubt session, okay। doubt session मतलब ये नहीं जो ये फॉर्म भरूंगा तो इस फॉर्म में ये क्या होंगे, उस फॉर्म का सर ये लिंक का क्या करूं, डोंट आस्क दोस सिली क्वेश्चंस, ओके। we are not interested in those questions, we are interested in the subjects, subjective matter, we are interested in the subjects, okay, conceptual questions, we are not interested in any regarding form fill up, regarding exam center or something like that. I do not ask all those questions, because I have seen in many comments that means sir मैं ये एग्जाम दे सकता हूँ, मैं तीनों दे दूं,
मैं उस तरह से कर लूँ, इस तरह डू नॉट आस्क ऑल दोज क्वेश्चंस, प्लीज गो थ्रू द नोटिफिकेशन, एवरीथिंग इज ओवर देयर, ओके। अब द मोस्ट इंपोर्टेंट, यू डू नॉट स्टडी, जो इस तरह क्वेश्चन पढ़ते हैं उसको पढ़ने की आदत नहीं है, ओके। तो आप लोग एटलीस्ट आदत तो बनाओ, यू हैव टू मेक इट अ हैबिट टू स्टडी, टू रीड, एटलीस्ट रीड द नोटिफिकेशन, एवरीथिंग इज डिक्लेयर्ड ओवर देयर। आप लोग वो नहीं पढ़ के एक वैकेंसी आ गया, अब नाउ ये समबडी हैज टोल्ड अबाउट द सिलेबस, तो वहां पे आपने कमेंट्स में डाल दिए वो सारे क्वेश्चंस। अरे इफ यू गो थ्रू द नोटिफिकेशन यू विल गेट एवरीथिंग ओवर देयर। तो डू नॉट आस्क ऑल दोज क्वेश्चंस इन माय चैनल, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। विल बी टॉकिंग अबाउट द टॉपिक्स, डिस्कशंस, ठीक है, अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, नथिंग एल्स, नथिंग एक्स्ट्रा, ओके। तो बी केयरफुल इन दैट, ठीक है। तो और हैबिट बनाओ, क्योंकि आप लोग को बुक्स भी पढ़ने साथ में, ओके। एवरी लिंक इज गिवन। तो आप थोड़ा बुक्स की बात करें, डिजिटल लॉजिक के लिए हम लोग मॉरिस मेनू यूज करेंगे, आई एम टेलिंग यू। तो इसकी भी आप लोग इफ यू विश तो मैं सॉफ्ट कॉपी आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। एल्गोरिथम के लिए कॉर्मेन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, विलियम स्टैलिंग्स इज वेरी गुड बुक। मॉरिस मेनू भी वी कैन यूज मॉरिस मेनू ऑल्सो, डू नॉट, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। ऑपरेटिंग सिस्टम गैल्विन, वेरी गुड बुक। कंप्यूटर नेटवर्क टैननबॉम एंड फ्रोजन बोथ, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क में व्हाट हैपेंस, आप इधर देखिए, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, यहाँ पे आप देख रहे हो डिजिटल कम्युनिकेशन, दिस पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द डिजिटल कम्युनिकेशन, ये पूरा आपके टैननबॉम की पार्ट है। टैननबॉम, दिस इज फ्रॉम टैननबॉम, टैननबॉम में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। आप लोग को शायद यदि ना समझ आए तो डू नॉट वरी, ठीक है, हम तो लेक्चर्स में लेके आएंगे। तो दिस डिजिटल कम्युनिकेशन इज फ्रॉम टैननबॉम, टैननबॉम टेलिंग यू, ओके। एंड द कंप्यूटर नेटवर्क इज फ्रॉम फ्रोजन, फ्रोजन हम लोग को करना पड़ेगा। डीबीएमएस के लिए कॉथ इज वेरी गुड बुक, यू ऑल नो अबाउट इट। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, केनेथ एच रोसन, दिस इज वेरी गुड बुक। डेटा स्ट्रक्चर के लिए भी आप विलिंग स्टेलिंग यूज कर सकते हो। कंपाइलर डिजाइन, पाइथन, तो इसमें आप मेरा लेक्चर्स फॉलो करो, नथिंग एल्स। कंपाइलर डिजाइन, पाइथन में लेक्चर्स फॉलो करो, दैट इज मोर देन इनफ। देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए एक बुक है, फ्रेशमैन, ठीक है। तो हम तो लेक्चर्स लेके आएंगे, एक या दो लेक्चर में हम लोग कवर कर देंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को। उसके बाद विल बी कमिंग विद द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आल्सो और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। वो क्वेश्चन यदि आप कर लोगे दैट इज मोर देन इनफ। बार बार यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन, अंडरस्टूड। ये नहीं, जब सपोज अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लेक्चर सीरीज है, वो 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, 2 नहीं 2 से 3 लगेंगे, 3 लेक्चर में। उसके बाद वी केम अप द क्वेश्चंस, उसका करके आप लोग यू केप्ट इट, यू हैव टू रिवाइज एवरी डे, otherwise you will forget the things, that's also the thing, okay। And okay, then cyber security and cloud technology, yeah, this is also on paper, okay। So my lectures are more than enough. Now can you see over here, let me go over there, this syllogism, ये सिलोगिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, इससे 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने खुद भी यूट्यूब से, मैं जब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, या मैं अभी भी देखता हूँ, सिलोगिज्म कोई भी ठीक से नहीं करवाते हैं, सिलोगिज्म इट्स सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी हम लोग करेंगे। दिस इज नॉट अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, दिस इज ऑल्सो इन दैट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की पार्ट है, डिस्क्रीट मैथ्स, ओके। तो डिस्क्रीट मैथ, तो ये हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। बाकी जो ब्लड रिलेशन, क्लॉक कैलेंडर, ये सारे हैं आप लोग यूट्यूब से देखेंगे। और हम क्या, व्हाट वी विल डू, जैसे हम लोग वी आर फोकसिंग इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के पेपर के बीच बीच में, टू ईज द माइंड, ठीक है, इस तरह के भी लेक्चर्स भी हम लोग लेके आएंगे, जिस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। विल बी कमिंग विद दिस लेक्चर्स आल्सो। बट आप लोग चाहो तो आप अलग से आप लोग यूट्यूब में, यूट्यूब का कोई भी चैनल से आप लोग देख सकते हो। नहीं देखोगे तो डू नॉट वरी, इन बिटवीन विल बी कमिंग, अगस्त तक है, ठीक है। तो एंड विल बी गोइंग इन ए वेरी फास्ट मैनर। हमारा जो क्लासेस होंगे इट विल बी वेरी फास्ट, ओके। ये नहीं थोड़ा सा करवा के वी लेफ्ट इट, नॉट लाइक दैट, ठीक है। इट विल वेरी फास्ट, ताकि 2, 3 या 4, 5 लेक्चर में हम लोग, जैसे डेटा स्ट्रक्चर है, so in 3 lectures, 2 to 3 lectures, we will be covering the whole syllabus, I'm telling you. So in that way, just computer networks, it will take time, because this is a very big thing, okay। it will take time, 4 to 5 lectures, 3 to 4 lectures maximum। तो ऐसे करके हमने प्लान कर लिए, ठीक है। और उसके बीच में क्या करेंगे, एक जैसे हमने ये पेपर, टेक्निकल पेपर कर लिए, बीच में मैंने ब्लड रिलेशन का एक लेके आया लेक्चर, ठीक है। तो विल बी, आई विल बी देयर, वन मैडम विल बी देयर, and a few more people will get involved in this program, okay। And it's a very big thing, we'll be working hard, and you too have to work hard in that, we will be doing, okay। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ये आप लोग को खुद देख, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ये पहली बार आया है, ठीक है। दैट यू हैव टू प्रिपेयर ऑन योर ओन, ओके, दैट यू हैव टू प्रिपेयर ऑन योर ओन। अब जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स में क्या आएंगे,
स्पेशली जनरल करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज में आप लोग टेक्नोलॉजी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेना, जो आजकल इन्वेंशन हो रहा है, इनोवेटिव हो रहे हैं, ठीक है, उसका करंट अफेयर्स जो नेशनल इंटरनेशनल हो तो वो सारे आप देखोगे। लेकिन गो थ्रू द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या, किस तरह का टेक्नोलॉजी अपडेशन आ रहे हैं, ठीक है, यू शुड टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, दीज आर द थिंग्स। और डिस्टेंस सिंपल इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला आप लोग को पता है, प्रिंसिपल रिलेटिव टाइम बाय 100, कंपाउंड इंटरेस्ट को भी फॉर्मूला पता है, ए इक्वल टू पी। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन, ये सब 10th 12th में आप लोग जो किए हो, यही सारी चीजें हैं। डेटा इनसफिशिएंसी, ये सारी चीजें हम लोग करवाएंगे। सिलोगिज्म इज द मोस्ट, इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, बट मेनी पीपल फील्स डिफिकल्टी, जिसने पेपर अभी तक दिए हैं, ठीक है, ये दिस पेपर एनआईसी, तो उन लोगों को सिलोगिज्म काफी मिले होंगे, और सिलोगिज्म मैक्सिमम बच्चे गलत ही करते हैं, तो सिलोगिज्म पे हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे इस बार। ओके, तो ऐसे करके हम लोग करेंगे। एंड लेट मी टेल यू, एवरीथिंग इज फ्री, डू नॉट वरी। तो विल बी प्रोवाइडिंग, आप लोग को क्या करना है, डू नॉट आस्क फॉर नोट्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, नोट्स आप लोग खुद बनाओ, हमारे नोट्स क्यों लेंगे? सपोज आई बिकॉज आई विल बी राइटिंग द नोट्स, आई विल बी, तो व्हाट आई एम प्रिपेयरिंग, आई नो व्हाट इज देयर इन द नोट्स। तो आप जब अपने लिए नोट्स बनाओगे तो फिर क्या होगा, यू नो अबाउट द नोट्स, डू नॉट शेयर द नोट्स और आस्क फॉर नोट्स, ये आप खुद बनाओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड? बुक्स हम शेयर कर देंगे, ठीक है, एंड एवरीथिंग इज फेयर। टेस्ट के लिए ₹50 इज चार्ज फॉर टेस्ट, बिकॉज इट इज tedious टू चेक एंड एवरीथिंग। ऑनलाइन ही होंगे, एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन, ठीक है। एंड आप लोग इसके 50 रुपीज है, ठीक है। तो इफ यू आर, यार आप लोग को देना चाहिए टेस्ट, एक बार देखे आपको, यू विल अंडरस्टैंड द व्हाट इज द लेवल ऑफ द टेस्ट एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम्स इन द पेपर। तो ये आपके होंगे, जब भी हमारे टॉपिक्स या बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगे, कोई चैप्टर कवर हो जाएंगे, तो विल बी कमिंग विद दिस टेस्ट। टेस्ट ज्यादा नहीं होंगे कभी टेस्ट, बट देयर विल बी टेस्ट, ओके। और उसके बाद आप लोग को कुछ मैं लिंक्स दे दूंगा, उस लिंक से आप लोग थोड़ा सा देख लोगे तो यू कैन डू इट लाइक दैट, ओके। टेस्ट हम लोग जो मीन्स जिस तरह क्वेश्चन आते हैं, और माइंड बॉगलिंग टेस्ट सब सारे लेके आएंगे। जैसे एक मैंने एल्गोरिदम्स, एल्गोरिदम का 2 या 3 टेस्ट लेके आएंगे, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग थिंग, वेरी बिग टॉपिक, यू कैन सी इट्स अ वेरी बिग टॉपिक। इसको एक साथ यदि लेके आएंगे तो पीपल विल गेट कंफ्यूज, अंडरस्टूड? तो एक या दो, 2 टेस्ट विल बी देयर इन दैट वे, ठीक है। ऐसे करके हम लोग करेंगे, अंडरस्टूड? तो ऐसे करके आप लोग करोगे तो विल बी स्टार्टिंग द सीरीज फ्रॉम फ्राइडे, अंडरस्टूड? फ्रॉम फ्राइडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट। वन सेक प्लीज। हाँ, तो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 17th मार्च हम लोग का लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो गेट रेडी, और द लेक्चर सीरीज काम है 9 PM, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज हमारे इग्नू के भी बहुत सारे बच्चे हैं, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर देम ऑल्सो, वो लोग भी तैयार हो जाए, वो लोग भी they are nowhere, so this channel is about the for them only, so वो लोग they should prepare and they should come for the NIC and all these exams so that they can also crack, अंडरस्टूड? तो लेकिन आप फर्स्ट टाइम बहुत सारे बच्चों ने हमें रिक्वेस्ट भी किए थे, इग्नू के भी बहुत बच्चे हैं, ठीक है, और भी बाहर के बच्चे हैं, वो सारे रिक्वेस्ट के, दैट्स व्हाई कमिंग विद दिस प्रोग्राम, ओके। तो गेट रेडी फॉर इट एंड लेट्स बैंग इट, ओके, एंड वी विल क्रैक। अब आई वांट दैट 5, माय टारगेट इज 598, ठीक है। इफ यू आर सीरियस प्लीज ज्वाइन, एंड इफ यू आर नॉट सीरियस प्लीज डू नॉट ज्वाइन, आई एम टेलिंग यू, यू वोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, you will get nothing, I'm telling you, okay. Through your marks only we will understand who is serious and who is not, and if we find out that somebody is not serious, okay, we are going to throw that person out from the group, okay. So that's all the best, thank you.